Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is software re-engineering. Before starting today's topic, we recap the previous lecture. Our last two lectures were about software process improvement. In our last lecture, we discussed capability maturity model integration that is based on CMM maturity model. We discussed that this model is a meta model and provides two kind of model support. The first one is the continuous and the second one is the staged model. Continuous models mean that we define different process areas, and in those different process areas we focus on the continuous improvement, and at the same time we evaluate or assess those process areas based on different levels of maturity. That's why we call it staged model. So after discussing this framework in general, we discussed the capability levels of this framework. The first one was incomplete, where we don't have any CMMI recommended practices, and we are doing in some, we may say that it is like ad hoc approach that we follow at this level, and then gradually we are moving as we achieve different capability levels. We are moving towards more formal approach, our documented approach, our documented process. So the final two levels are quantitatively managed, where we focus on the quantitative measures and the analysis, and similarly in optimized level we use different statistical tools or statistical techniques to optimize our resources relevant to the project. We in fact optimize the overall process, and we focus on the continuous process improvement. And then we discussed an example of one of key process areas, and we discussed different specific goals and practices in that area. That was project planning. Every specific goal has specific practices, and similarly we also have generic goals and practices, or general goals and practices, and in each general goal we have one or more general practices. And after discussing CMMI, we discussed briefly some other frameworks. The first one was SPICE, and SPICE was a model that was our framework that was proposed for the we may say that it is like the complementary to the ISO models or ISO standards for the software quality. And similarly Bootstrap is also somehow similar to the SPICE, and it is also used with the ISO standards. Then we discussed TIC-IT, ticket, and it is also of assessment model that is used with the ISO 9000 quality standard. That is general quality standards. Any organization can go for this standard, but SPICE and Bootstraps are more specific to the software quality standards. So when we use ISO 9000 for any software organization, then we follow TIC-IT. And we also discuss the personal software process, and in personal software process focus is on the practitioner, on the individual, rather than focusing on the whole organization. We said that we need to focus on the practitioner, the developer, and developer should have privilege to decide our plan for the project. And we discussed key activities like planning activities, in which we plan for the project, then design activity, then high-level design and detailed design, and then code and implementation, and the last activity was the post-mortem, where he or she has to do the analysis based on the metrics collected or data collected at different levels, are the key activities.
So unfortunately, this model was not widely adopted by the software organizations. Then another model was proposed, that was team software process, and team software process is like somehow the midway of the organization and the process software process. In this process, we are focusing on the software team or the development team rather than the individual or the organization, and the key activities are quite similar to the personal software process. And after discussing these different frameworks, we focused on the SPI return on investment, that when we are doing huge investment in SPI initiative, what is the return on that investment. So qualitative way are like if we have better quality filters, we are producing better quality products. It is the one quality factor that help us to assess the SPI initiative, the effectiveness of the SPI initiative. Another way, the possible way is to assess this SPI initiative is the size of rework. If we are reducing the size of rework and we are getting lesser number of defects in the products, it means that our initiative is quite successful. But if we want to quantify the return on investment in SPI, it is quite difficult task. So organization may brainstorm that how to quantify return on investment in this case. And finally, we discuss some current trends in software process improvement, and we said our focus should be on the agile approach, on the agile development. Today's software industry is more focused or more agile oriented. So we need to modify our SPI initiatives towards agile development, and rather than focusing on the whole organization, we need to focus on the project level. And if we are dealing with the project, then our chances of improvement are quite high. And similarly, we need to focus on the new, improved or refined process models rather than the quite detailed models like CMMI. It is quite detailed model. It can provide us the basis for the new improved model that should focus on the key process activities rather than quite detailed process practices. So in this way, we can actually minimize the investment in SPI, and hopefully we will get better results of our SPI initiatives. Now we start today's topic, that is about software re-engineering. We start with the unified theory of software evolution. This is the key work that was done by some researchers in the area of software evolution. So they come up with some some sort of laws. So we discuss briefly this law, and the first is the law of continuing change. What does it mean? If we are developing products for the real world, so change is quite obvious in the real world. So whenever change happens, we need to customize or change our software as well. So this law actually indicates about that continuous change. Similarly, अगला देखें, the law of increasing complexity. और ये क्या है? What does it mean? कि when you update the software, change the software, और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता है तो ऑब्वियसली उसकी कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है. अनटिल अनलेस के कम्प्लेक्सिटी को जो है वो प्रॉपरली जो है मेंटेन ना किया जाए, प्रॉपरली कंट्रोल ना किया जाए, कोई उस तरह की कॉन्शियस एफर्ट ना की जाए, तो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जाएगी. थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. व्हाट डज इट मीन? कि जो आपका जो प्रोडक्ट होती है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो खुद से रेगुलेट करता है. व्हाट डज इट मीन? कि जो भी उससे रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्ट मेजर्स हैं, वो
दैट आर लाइक क्लोज टू नॉर्मल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चेंज या कुछ उस तरह की चेंजेस नज़र आए, बल्कि वो सेल्फ रेगुलेट होता है। और फिर इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, व्हाट डज इट मीन कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसकी जो इफेक्टिव जो ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस है, जो ग्लोबल एक्टिविटी रेट है जो उसका, दैट इज आल्सो क्वाइट इनवेरिएंट। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कोई सॉफ्टवेयर की एवोल्यूशन से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पे स्टेबल रहती है। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी मीन्स कि आप जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो मॉडिफिकेशन करते हैं, अपडेट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता है, तो वट एवर द कंटेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और उसका जो बिहेवियर है, अब उसके साथ जो है वो काफ़ी जो है ना फेमिलियर से होते चले जाते हैं। तो उस इन अदर वर्ड्स यू मे से कि आप उसके मास्टर होते चले जाते हैं। तो ये भी एक ऑब्वियस सी बात है। और फिर इसी तरह से द लॉ ऑफ कंटिन्यूइंग ग्रोथ, व्हाट डज इट मीन कि जो आपके सॉफ्टवेयर चेंज होता है, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी चेंज होती है, क्योंकि बिजनेस जब चेंज होता है, बिजनेस प्रोसेस चेंज होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर आप नई नई फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करते हैं, तो फंक्शनल जो कंटेंट होता है वो भी इंक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सॉफ्टवेयर इवॉल्व करता है, तो ये लॉ जो है उसको, उस ग्रोथ को जो है डिस्क्राइब करता है। फिर इसी तरह से द लॉ ऑफ डिक्लाइनिंग क्वालिटी, और जब हम क्वालिटी डिक्लाइन की बात करते हैं तो व्हाट डज इट मीन कि अगर आप जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इवॉल्व करता है, जैसे जैसे आप उसके अंदर चेंजेस करते हैं, तो उसके वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, अनटिल अनलेस कि आप कोई सीरियस उसके लिए एफर्ट करें कि उसकी क्वालिटी को भी आपने मेंटेन करना है। अदरवाइज जैसे जैसे चेंजेस अगर होती हैं, उस जो आप सॉफ्टवेयर है वो इनस्टेबल होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती। और फिर इसी तरह से जो आखिरी लॉ है इसके अंदर, दैट इज द फीडबैक सिस्टम लॉ। और व्हाट डज इट मीन कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, जो भी आप सॉफ्टवेयर इवॉल्व हो रहा है, उसके हवाले से आपका एक प्रॉपर फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। अगर प्रॉपर फीडबैक सिस्टम नहीं होगा तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो ये जो डिफरेंट लॉज जो हैं, ये सारे इंडिकेट करते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन को, और सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के अंदर जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं और उससे रिलेटेड उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से जो है डिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात करते हैं री इंजीनियरिंग की। व्हाट डज इट मीन? री इंजीनियरिंग क्या है? तो री इंजीनियरिंग बेसिकली इट इज़ द रेडिकल चेंजेस इन बिजनेस प्रोसेस, जो कि आपके उस पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो आपका प्रोसेस है उसको कंप्लीटली चेंज कर दें, उसको हम कहते हैं री इंजीनियरिंग। और जब हम सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली वो जो आपके कंप्यूटिंग जो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, वहाँ पे भी रेडिकल चेंजेस की बात हो रही है। जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, जब उसको आप जो मेजर चेंजेस की तरफ लेके जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड री इंजीनियरिंग। और डेफिनेटली जब आप चेंजेस जब होती हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है उसको वो पॉजिटिव भी हो सकती है चेंजेस, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस होंगी तो उसके अपने अपने रिजल्ट्स होंगे, अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जब आप री इंजीनियरिंग की एक्टिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है करते हैं, अपने बिजनेस प्रोसेस को चेंज करते हैं, तो क्या होगा? समटाइम्स आप इम्प्रूव कर जाएंगे, आपकी जो कॉम्पिटेंसी है वो बढ़ जाएगी, और कभी क्या होगा, क्वाइट पॉसिबल यू मे नीड टू डाउन साइज। जब आप रीचेंज कर रहे हैं, या सॉरी ये कहना चाहिए कि आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं अपने बिजनेस प्रोसेस को, तो क्वाइट पॉसिबल कि आप डाउन साइजिंग की तरफ चले जाएं। या ये भी हो सकता है कि डाउन साइजिंग के साथ साथ आप जो है कुछ अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दें। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन री इंजीनियरिंग जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, और जब हम
आईटी इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो दो चीज़ें जो है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज़ द बिजनेस री इंजीनियरिंग, जब बिजनेस प्रोसेस को हम रिवाइज करते हैं उसको हम अपडेट करते हैं, एंड सेकेंडली द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को देखते हैं तो ये दो मिल के जो है हमें ओवरऑल जो चीज़ देती हैं, जो व्यू या जो पर्सपेक्टिव देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम व्यू। और इसकी हमने बात स्टार्ट में की थी कि जब हम प्रोजेक्ट आईटी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम्स व्यू कि क्या डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिसके अंदर आपने सारी चीज़ों को एवेलुएट या असेस करना है, प्लस माइनस को। अब हम बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की, और इसको बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया। देखें, द सर्च फॉर एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेडिकल चेंज इन बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स। बड़े अच्छे तरीके से बताया गया कि वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सर्च फॉर द पॉजिटिव चेंज, रेडिकल चेंज जो है, और वो क्या होगी और फिर कैसे होगी इम्प्लीमेंटेशन, और फिर ऑब्जेक्टिव क्या है कि अल्टीमेटली हमने क्या करना है, अपने आउटपुट जो है, जो आउटकम है जिसको हमने यहाँ पे ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स का है, वो उसको अचीव करना है, मतलब आउटकम को बेहतर करना है। तो अब इसके अंदर जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इसके अंदर कंसिडरेशंस हैं कि हाउ इज़ द सर्च कंडक्टेड, कैसे ये सर्च कंडक्ट की जाएगी, कैसे आप चेंज को जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपके लिए जो है फिजिबल है, एंड सेकेंडली हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इट इज़ आल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और फिर हाउ टू इंश्योर दैट द रेडिकल चेंज लीड टू ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स रादर देन द ऑर्गेनाइजेशनल क्योस। ऐसा नहीं है जैसे मैंने पिछले लेक्चर में जब हमने बात की थी सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट की, कि अगर वो राइट डायरेक्शन के अंदर नहीं होंगे तो प्रोसेस इंप्रूव करने की बजाय क्या होगा, आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल क्योस ही होगा। तो हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो चेंजेस हम लेके आ रहे हैं दैट शुड लीड टू द ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स। अब हम बात करते हैं बिजनेस प्रोसेसेस की, और जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एक्टिविटीज टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो बिजनेस प्रोसेस क्या है कि वो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमारे रिलेटेड टास्क है, कोई स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली इट इन्वॉल्व्स पीपल, इक्विपमेंट, अदर रिसोर्सेज, ठीक है, और कुछ आपके बिजनेस प्रोसीजर्स होंगे, ये सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं बिजनेस प्रोसेस की, लाइक इफ यू आर गोइंग टू डिजाइन अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज आल्सो अ बिजनेस प्रोसेस। यू आर परचेजिंग सर्विस और एनी सप्लाई, that is also kind of a business process. You are hiring a new employee, तो ये सारी डिफरेंट क्या है एग्जाम्पल्स हैं बिजनेस प्रोसेस की। और फिर अगेन आपका जो बिजनेस प्रोसेस है उसका कोई स्पेसिफिक डिफाइंड कस्टमर होगा जो कि उस आउटकम को, उस रिजल्ट को, उस सर्विस को जो है अवेल करेगा, लेगा। तो हर प्रोसेस के अगेंस्ट आपकी कोई आउटपुट, कोई आउटकम होगा, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, कोई सर्विस भी हो सकती है, और उसका कोई डेफिनेट कस्टमर होगा। और फिर बिजनेस प्रोसेस जरूरी नहीं है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो, अक्सर बिजनेस प्रोसेसेस आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज होते हैं उनको भी क्रॉस करते हैं, आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट और भी स्टेक होल्डर्स होते हैं आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी आपके बिजनेस प्रोसेसेस का पार्ट होते हैं। और इसकी जो एक कहना चाहिए कि एक हायरार्की सी जो है, जो जिस तरह से आप इसको व्यू कर सकते हैं, दैट इज कि आपके पास बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आपके बिजनेस सब सिस्टम्स हैं, देन यू हैव बिजनेस प्रोसेसेस, उसके अंदर बिजनेस सब प्रोसेसेस होते हैं। तो ये ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट डज बिजनेस प्रोसेस मीन्स। अब हम बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मॉडल की, कि जब हम बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मॉडल है। और पहली बात जो अंडरस्टैंड करने की है, दैट इज दिस प्रोसेस इज इन फैक्ट आइटरेटिव प्रोसेस या एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। एक दफा नहीं होगा बल्कि मल्टीपल साइकिल्स के अंदर होगा, मल्टीपल आइटरेशंस में होगा। और अगेन
ऐसा क्यों है? बिकॉज नथिंग इज स्टैटिक, चेंज इज ऑलवेज देयर। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता है। तो उस चेंज के साथ जो है फिर आपके बिजनेस प्रोसेस को भी जो है वो चेंज होना होता है। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और फिर इसके अंदर जो की एक्टिविटीज हैं इस मॉडल की, फर्स्ट वन इज बिजनेस डेफिनेशन। और बिजनेस डेफिनेशन के अंदर आप क्या करते हैं, यू नीड टू डिफाइन बिजनेस गोल्स, कि आपके क्या बिजनेस गोल्स हैं, और फिर उसका ऑब्जेक्टिव, बिजनेस गोल्स डिफाइन करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू रिड्यूस द टाइम, टू इम्प्रूव द क्वालिटी, और भी पर्सनल डेवलपमेंट हो और एम्पावरमेंट हो। तो जो बिजनेस गोल्स हैं वो इन साथ ये एक ऑब्जेक्टिव उसके साथ या एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट्स हैं। और फिर अगेन जो आपके बिजनेस गोल हैं दैट मे बी एट बिजनेस लेवल या किसी स्पेसिफिक बिजनेस कंपोनेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन योर बिजनेस गोल्स जब आप बीपीआर मॉडल की बात करते हैं। इसके अंदर जो सेकंड की एक्टिविटी है दैट इज प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन में क्या है, यू नीड टू डिफाइन द क्रिटिकल प्रोसेसेस। जो भी आपके उस बिजनेस गोल्स रिलेटेड क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। और फिर यू नीड टू रैंक दोज प्रोसेसेस, आप उनकी प्रायोरिटी सेट करते हैं। अच्छा कौन सा प्रोसेस जो है वो हाई प्रायोरिटी है, कौन सा लो प्रायोरिटी है, कौन सा मीडियम प्रायोरिटी है, उनको रैंक करते हैं आप। थर्ड की एक्टिविटी इज प्रोसेस एवेल्युएशन। यू नीड टू असेस द प्रोसेस, एवेल्युएट द प्रोसेस। कैसे, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं आप उनका एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर आपकी क्या कॉस्ट आ रही है, आप उसको जो है नोट डाउन करते हैं, उसको देखते हैं। और इसी तरह से आप उससे रिलेटेड क्या आपके क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं या परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारा जो है प्रोसेस दैट इज प्रोसेस एवेल्युएशन या असेसमेंट। और डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट जो है एक्टिविटी है कि हमने पहले भी जब इम्प्रूवमेंट की बात की और अब हम एवोल्यूशन की या री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट की एक्टिविटी इज प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन। और प्रोसेस स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं, वी नीड टू डिफाइन डिफरेंट यूज केसेस। और यूज केसेस के थ्रू आप देखते हैं कि कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, और उन यूज केसेस की बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, टास्क जो है क्या आपके टास्क होंगे आप उनको डिफाइन करते हैं। ये आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी किस तरह से आप स्पेसिफाई करने जा रहे हैं प्रोसेस को, जिसको जो कि रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग प्रोसेस को। और फिर प्रोटोटाइपिंग। और प्रोटोटाइपिंग क्या है, सिंपली कि आप उसको स्मॉलर स्केल के ऊपर एक स्मॉलर लेवल के ऊपर जो है आप प्रोटोटाइप करते हैं जो भी रीडिजाइन बिजनेस प्रोसेस है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप उसको किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर या किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोटोटाइपिंग है बिजनेस प्रोसेस की, रादर देन कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसको अप्लाई करें। और फिर आपके पास जो फाइनल एक्टिविटी है बीपीआर मॉडल के अंदर दैट इज रिफाइनमेंट एंड इंस्टेंशिएशन। आप फीडबैक लेते हैं बेस्ड ऑन योर प्रोटोटाइपिंग, और उस फीडबैक के बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि इफ यू आर गोइंग टू इंस्टेंशिएट दैट स्पेसिफिक और दैट रिफाइंड प्रोसेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं या की एक्टिविटीज हैं जो कि बीपीआर मॉडल के अंदर होती हैं या होनी चाहिए। इस स्लाइड के ऊपर डायग्राम के थ्रू जो है बीपीआर मॉडल को डिस्क्राइब किया गया है, और ये फिगर जो है पेज नंबर 766 से ली गई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर अप्रोच से। और इसके अंदर देखें कि प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन से हम प्रोसेस एवेल्युएशन की तरफ मूव करते हैं, और वहाँ से प्रोसेस स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन पे, फिर प्रोटोटाइपिंग, फिर रिफाइनमेंट एंड इंस्टेंशिएशन पे। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस या मॉडल है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल की। पहले बिजनेस प्रोसेस मॉडल की बात कर ली, अब सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस की। और री इंजीनियरिंग जो है बेसिकली ये भी इसको चाहिए होते हैं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज। जैसे हमने
सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के केस में कहा था कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इसी तरह से री इंजीनियरिंग का प्रोसेस भी बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस है। और फिर इसके अंदर हमें हम कह सकते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ रीबिल्डिंग एक्टिविटी है। और रीबिल्डिंग एक्टिविटी जो है इसको आप इस तरह से भी एनालॉजी ले सकते हैं कि अगर आपने इफ़ यू वांट टू रीबिल्ड द हाउस, अगर आपने किसी पहले से जो है एक घर लिया है, किसी से बहुत लो प्राइस पे ले लिया है और इवन आपने हो सकता है कि उसको देखा भी नहीं है, आपने डील की है, तो अब अगर आप उसको देखते हैं तो आपने अगर ये डिसाइड करना है कि यू आर गोइंग टू रीबिल्ड इट, तो पहले उसके लिए कोई प्लानिंग करनी होगी, आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए होगा जो कि बिल्डिंग के इसको डोमेन को अंडरस्टैंड करता हो। फिर आपने इन चीज़ों को देखना होगा कि पहले बिल्डिंग कैसे बनी है, क्या वो जो स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग उसी को आप यूज़ कर सकते हैं या कंप्लीट आपने नया डिज़ाइन करना है और दोबारा से कंस्ट्रक्शन करनी है, और क्या कुछ जो है पहले किस तरह से उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो कैसे है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो सिमिलरली जो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस है ये भी एक रीबिल्डिंग एक्टिविटी है। तो इसके अंदर भी पूरा आपको प्रॉपर एनालिसिस प्लानिंग करना होगा, अदरवाइज जो है फेलियर होगा। तो अब इस मॉडल के अंदर जो पहली एक्टिविटी है, जो की एक्टिविटी, दैट इज इन्वेंट्री एनालिसिस। और इन्वेंट्री एनालिसिस क्या है कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या अभी तक एप्लीकेशंस बनी है, क्या एप्लीकेशंस वहां पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, यू नीड टू नोट डाउन और यू नीड टू मेक एन इन्वेंट्री। और वो इन्वेंट्री क्या होती है, सिंपल कुछ आपकी एक एक्सेल शीट भी हो सकती है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, क्या आपकी एप्लीकेशन है, क्या बनी है, क्या कब बनी है, क्या उसकी एज है, क्या उसका जो है बिजनेस क्रिटिकलिटी है। जैसे यहाँ पे साइड के ऊपर देखें तो कुछ फैक्टर्स, की फैक्टर्स लिखे हुए हैं जिसकी बेस के ऊपर आप उसको बाद में एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा प्रायोरिटी वाली एप्लीकेशंस हैं जिसको फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिजनेस क्रिटिकलिटी क्या है उसकी, लॉन्गिविटी क्या है, कितनी ड्यूरेशन से वो चल रही है एप्लीकेशन, करंट मेंटेनेबिलिटी, उसको कितना कुछ अभी तक मेंटेन किया गया है, कोई उसके प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही है या नहीं हो रही। तो फिर आप जब डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं उसके अंदर कि किन के ऊपर आपने रिसोर्सेज जो है लगाने हैं, किन को आपने री इंजीनियर करना है जो आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, डेफिनेटली ज़्यादा आपको बिजनेस प्रोवाइड कर सकती हैं। तो अब उसके लिए उन स्पेसिफिक कैंडिडेट एप्लीकेशंस के लिए यू नीड टू एलोकेट द रिसोर्सेज। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे डिस्कशन है वो ये है कि ये जो इन्वेंट्री एनालिसिस है इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस, टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस जो डिमांड्स या बिजनेस नीड्स जो हैं वो चेंज होती हैं। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस डिमांड्स, नीड्स या प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, तो आपकी ये जो इन्वेंट्री है इसके अंदर जो एप्लीकेशन की ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चेंज होंगे, प्रायोरिटीज चेंज होंगी और you need to make wise decisions for the investment. Second key activity is document restructuring। और जब डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर हमने ये देखना है कि जो भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है उसके लिए कितनी आपके पास पहले से डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। और नॉर्मली जो हमारे पुराने सिस्टम है जिनको लिगेसी सिस्टम्स भी कहते हैं उनके अंदर डॉक्यूमेंटेशन ना होने के बराबर थी, तो अब उसको भी देखना है। और फिर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं। देखिए जैसे फर्स्ट वन इज कि अगर है ही नहीं सिरे से और एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अब जो नई डॉक्यूमेंटेशन करना ये एक टाइम कंज्यूमिंग, एक रिसोर्स कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो यू नीड टू डिसाइड कि ये जो एप्लीकेशन है अगर ये एप्लीकेशन कोई चेंज होने नहीं जा रही, समहाउ इसमें ये एक तरह की स्टेबल हो गई है या स्टैटिक हो गई है या लॉन्ग रन के अंदर आपको ये एप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको ऐसे ही चलने देंगे और आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे। और इसी तरह से कुछ और जो आप समझते हैं कि एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर आपको
डॉक्यूमेंटेशन समहाउ अवेलेबल है या नहीं भी है, तो आप समझते हैं कि इसके डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट होना चाहिए और उसके अंदर आप नेसेसरी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज की, कि एक बेयर मिनिमम लेवल के ऊपर जो है आप डॉक्यूमेंटेशन को ले आएँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो लिमिटेड ही होते हैं और फिर आपको उस तरह से डिसाइड करना होता है। और तीसरी इसके अंदर ऑप्शन ये हो सकती है डॉक्यूमेंटेशन रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, कि कोई एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है दैट इज क्वाइट critical for your business, and then you have to decide for the complete documentation of that specific product. तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसको फुली डॉक्यूमेंट करेंगे या यू में से एक रीडॉक्यूमेंट करेंगे। और फिर इसी तरह से जो अगली की एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल में, दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। और रिवर्स इंजीनियरिंग का जो ओरिजिन है दैट इज हार्डवेयर डोमेन। हार्डवेयर से जो है ये रिवर्स इंजीनियरिंग की टर्म सॉफ्टवेयर में आई है। और बेसिकली ये होता क्या था कि जब आपने कोई हार्डवेयर डिवाइस लिया, कोई चिप ली और उसको जो है डिसेंबल किया, और उसके डिसेंबलिंग से जो है आप यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स या उसकी स्पेसिफिकेशन कह लें, अपने कंपटीटर्स की आमतौर पे देख रहे होते थे। कंपटीटर की चिप ली है, उसको डिसेंबल की है और उसके थ्रू जो है डिसेंबलिंग के थ्रू जो है आप उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर जाना चाह रहे हैं, उसके जो सीक्रेट्स हैं आप उसको जानना चाह रहे हैं, तो दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। अब रिवर्स इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है कि आपके पास आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन से वापस आप जो है कोड्स के थ्रू आप उसकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के ऊपर जाना चाह रहे हैं। और ये डेफिनेटली जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और यू मे से इट इज़ काइंड ऑफ डिज़ाइन रिकवरी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। और इसमें आमतौर पे ये भी होता है कि आप कंपटीटर के सॉफ्टवेयर को नहीं देख रहे होते, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर को देख रहे होते हैं जिसकी पहले से कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होती, उसकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते। तो फ्रॉम कोड यू गो बैकवर्ड टू द डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट जो की एक्टिविटी है दैट इज कोड रिस्ट्रक्चरिंग। और कोड रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में, ये मोस्ट कॉमन एक्टिविटी है, ये टाइप है री इंजीनियरिंग की। और इसमें आप अपना जो कोड है जो पहले से लिखा गया है, लेगेसी कोड भी कह लें उसको, आप उसको आप रिवाइज करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं या कम्प्लीटली रीराइट करते हैं। और फिर उसके बाद उसके प्रॉपर आप टेक्निकल रिव्यूज़ करते हैं और टेस्टिंग करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस नए कोड की वजह से जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हों। तो यू नीड टू मेक श्योर कि ऐसा उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जो आपने कोड की रिस्ट्रक्चरिंग की है। इसी तरह से एक नेक्स्ट जो की एक्टिविटी है दैट इज रिलेटेड टू द डेटा, और डेटा रिस्ट्रक्चरिंग कहलाती है। और इसके अंदर आप क्या करते हैं, जो कोड की रिस्ट्रक्चरिंग है उसको समहाउ मतलब री इंजीनियरिंग कहना भी जो है ये डिबेटेबल है, लेकिन डेटा रिस्ट्रक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो ये फुल स्केल री इंजीनियरिंग एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर आप क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग जो डेटा आर्किटेक्चर्स होते हैं आप उनका एनालिसिस करते हैं और उसको उसके अंदर आप देखते हैं कि क्या डेटा है, किस तरह की आपको डेटा स्ट्रक्चर्स या डेटा टाइप्स रिक्वायर्ड हैं। और फिर हो सकता है कि जब आप डेटा रिस्ट्रक्चरिंग करें तो ये डेटा रिस्ट्रक्चरिंग जो है अफेक्ट करे आपके प्रोग्राम आर्किटेक्चर को, या आपको कोड लेवल के ऊपर भी चेंजेस करना पड़े। तो ये भी एक की एक्टिविटी है इस ओवरऑल सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर, और इसको आगे भी हम फर्दर डिटेल में देखते हैं। और फिर इसी तरह से एक और की एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या है, इसको यूं कह सकते हैं कि आप जो भी आपने ये जो प्रीवियस एक्टिविटीज़ की हैं उनकी बेस के ऊपर आपने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करनी है। तो ऑटोमेटेड जनरेशन भी हो सकती है बेस्ड ऑन दोज ऑल चेंजेस और रिकमेंडेशन। आप नया वर्जन लेके आए, नई एप्लीकेशन लेके आए, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं उसको उसकी बेस के ऊपर आप अपने नया जो है डिज़ाइन लेके आए, उस एप्लीकेशन को अल्टर करें, तो ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कहलाती है। इस स्लाइड के ऊपर देखें, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल को इस डायग्राम में
प्रेजेंट किया गया है। पेज नंबर 769 से लिया गया है इस फिगर को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स अप्रोच की। और ये भी साइक्लिक जो है एक मॉडल है और कंटिन्यूस ही एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म होती हैं इन्वेंट्री एनालिसिस से डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग पे और रिवर्स इंजीनियरिंग पे और इसी तरह से कोड रिस्ट्रक्चरिंग पे। लेकिन इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आप इसको किसी स्पेसिफिक जो है एप्लीकेशन पूरे के लिए भी कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक जो है कंपोनेंट के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आप परफॉर्म करें। आप किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को भी लेके जो है उसके अंदर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, या 2-3 एक्टिविटीज़ करने के बाद आप उसको किसी भी लेवल के ऊपर विथड्रॉ भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग की। और रिवर्स इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं तो इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास कोई ऐसी जो है वो मैजिक स्लॉट नहीं है कि जिसके अंदर आप एक साइड से कोई इनपुट दें और आपकी दूसरी साइड से जो है ना वो रिवाइज्ड प्रोडक्ट जो है या उस तरह की जो आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाए। ये एक डिफ़िकल्ट जो है एक्टिविटी है रिवर्स इंजीनियरिंग, कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से जो है वापस डिज़ाइन की तरफ और स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो जो की इसके अंदर इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ वी नीड टू आइडेंटिफाई और वी नीड टू एक्सप्लोर डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। हम उसको देखते हैं, हम फोकस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीटनेस के ऊपर कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग से जो है हमें डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो हम बनाना चाह रहे हैं। और फिर इसी तरह से इसके अंदर हमें डिफरेंट टूल्स चाहिए, टूल्स के साथ साथ हमें ह्यूमन एनालिस्ट चाहिए, लोग जो है जो इसको समझते हो प्रॉपर, जो उसको अंडरस्टैंड कर सकें सॉफ्टवेयर को। और फिर इसके अंदर जो है क्या डायरेक्शन है, दैट इज़ आल्सो प्रोसेस जो रिवर्स इंजीनियरिंग का है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स की बेस के ऊपर जो है ये सारे फैक्टर्स भी वैरी करते हैं और ये सारे फैक्टर्स जो है रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर भी उस पूरी एक्टिविटी के ऊपर भी इफेक्टिव है कि वो कितनी आपकी सक्सेसफुल है या कितनी डिज़ायरेबल है। तो एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो है इट शुड बी हाई। व्हाट डज इट मीन कि आपका जो आप उसको जैसे कोड के लेवल के ऊपर, कंपोनेंट लेवल के ऊपर, फिर उसके बाद जो है और डिज़ाइन के लेवल के ऊपर, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन के लिए जितनी ज़्यादा आप उसकी लेयर्स को जो है एक्सप्लोर कर सकें थ्रू द कोड, ये उतना ही रिकमेंडेड है। और फिर इसी तरह से जो कंप्लीटनेस है, दैट इज़ कि आप कितनी जो है डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं हर एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर। और कंप्लीटनेस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, जो आपकी एनालिसिस एफर्ट है। जितना ज़्यादा आप एनालिसिस एफर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा जो है कंप्लीटनेस आएगी। और फिर इसी तरह से एक और जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड इंटरएक्टिविटी। और इंटरएक्टिविटी क्या है, इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमेटेड टूल्स एंड एनालिस्ट्स, कि जो आपके ह्यूमन एनालिस्ट हैं जो एनालिसिस कर रहे हैं उनको अगर आप टूल की सपोर्ट दें तो ये दोनों मिलके जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस। और इसके अंदर एक और जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है, दैट इज़ वी नीड टू फोकस ऑन द वन वे, कि हमें एक कोड से हमें जैसे हम अगर रिवर्स इंजीनियरिंग में उसी एक ही डायरेक्शन के अंदर चलें रादर देन कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की पॉलिसी को अपनाएं, वो अच्छी नहीं होगी, बल्कि एक ही डायरेक्शन के अंदर हमारी सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इस स्लाइड के ऊपर देखें, ये फिगर पेज नंबर 773 से ली गई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर अप्रोच से। डर्टी सोर्स कोड कह रहे हैं, डर्टी सोर्स कोड उसको कह रहे हैं जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, जो प्रॉपरली जो है मैनेज नहीं किया गया, रैंडमली लिखा गया है। तो उस कोड को जो है हम क्या करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं। और रीस्ट्रक्चर जब करते हैं तो उसको प्रॉपर प्रोसीजर्स में या प्रोसीजरल जो डिज़ाइन है उसको फॉलो करते हुए हम उसको ज़्यादा बेहतर फॉर्मेट में लेके आते हैं। और फिर उससे हमें क्या मिलता है, उसको वी कॉल इट द क्लीन सोर्स कोड। और क्लीन सोर्स कोड से फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्शंस, और ये एब्स्ट्रैक्शंस डिफरेंट लेवल के ऊपर होंगी रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग, इंटरफेस एंड डेटाबेस।
और फिर इससे जो है आपको इनिशियल स्पेसिफिकेशन मिलती है फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर, और उसको फिर आप रिफाइन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं एंड यू कम अप विद द फाइनल स्पेसिफिकेशन। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग या इसके अंदर काफ़ी एफर्ट रिक्वायर्ड है। अब हम बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग टू अंडरस्टैंड डाटा। और अगेन मैंने कहा कि रिवर्स इंजीनियरिंग जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, और जो हमने पिछली स्लाइड के ऊपर देखा कि डिफरेंट जो है लेवल्स के ऊपर हमें एब्स्ट्रैक्शन चाहिए होती है। तो फर्स्ट जो इसका लेवल है दैट इज़ रिलेटेड टू द डेटा, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर ये जो री इंजीनियरिंग हो रही है दैट इज़ द फर्स्ट री इंजीनियरिंग टास्क। और फिर डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, और डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस क्या हो सकते हैं एट द प्रोग्राम लेवल, एप्लीकेशन के लेवल के ऊपर आप उस पूरे कोड को देख रहे हैं ओवरऑल, और फिर इसी तरह से इंटरनल प्रोग्राम डाटा कि उसके अंदर जो इंटरनल प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर्स हैं आप उसको देखते हैं। फिर इसी तरह से आप आगे और फर्दर जो है उसको उसके क्या पैटर्न्स हैं उसके अंदर इसको सारा देखते हैं आप। तो अब सिस्टम लेवल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वी नीड टू फोकस ऑन द ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर्स, ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। और जब हम इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो क्या डिफरेंट हमारी पॉसिबल क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं, एंड हाउ वी कैन ग्रुप द रेलेवेंट और द रिलेटेड प्रोग्राम वेरिएबल। तो डेटा से रिलेटेड हमें इस तरह से इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर डेटा को देखना होता है। अगर हम डेटाबेस स्ट्रक्चर की बात करें तो डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर वी नीड टू डिफाइन डेटा ऑब्जेक्ट्स, क्या डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं और फिर उनका क्या रिलेशनशिप है। और जब आमतौर पे जो लेगेसीज हमारे सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर जो है वो आज की जो मॉडर्न जो रैशनल जो डेटाबेस की अप्रोचेस हैं वो नहीं थी। तो उसके अंदर फिर हमने फिर अगेन देखना है कि क्या डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके क्या आपस में रिलेशनशिप है, एंड देन वी नीड टू बिल्ड एन इनिशियल डेटा मॉडल या ऑब्जेक्ट मॉडल सॉरी, कि किस तरह से वो उसकी हो सकता है। फिर उसके अंदर वी नीड टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कीज, वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम उन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड देन वी नीड टू रिफाइन द टेंटेटिव क्लासेस, जो भी डिफरेंट क्लासेस पॉसिबल हैं उन ऑब्जेक्ट्स की उसको रिफाइन करना। और फिर इसी तरह से वी नीड टू डिफाइन जनरलाइजेशन और डिस्कवर एसोसिएशन, जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे जो है उन डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्लासेस हैं या ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसको कैसे उस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया जा सकता है, क्या पॉसिबल है कि उसके अंदर इनहेरिटेंस होगी या और इस तरह के डिफरेंट चीज़ों को हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसिंग के जो पहले हमने डेटा की बात की, अब प्रोसेसिंग की बात करते हैं। और प्रोसेसिंग के अंदर वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सट्रैक्ट प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शंस। और जब प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन भी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हो सकती है, सिस्टम लेवल के ऊपर हो सकती है, ओवरऑल जो आपका सिस्टम है उस लेवल पे आप अपने प्रोसीजर्स को, अपनी लॉजिक को, अपने प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। फिर सिस्टम से नीचे आ सकते हैं प्रोग्राम लेवल के ऊपर, या यूँ कहना चाहिए एप्लीकेशन लेवल पे, क्योंकि सिस्टम इज़ क्वाइट पॉसिबल कि सेट ऑफ एप्लीकेशंस, तो उसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को देख सकते हैं। और फिर कंपोनेंट लेवल के ऊपर, कंपोनेंट लेवल से आप पैटर्न के ऊपर आ सकते हैं कि जो इन जनरल जो उन कंपोनेंट के अंदर जिस तरह से प्रोसीजर्स को डिफाइन किया गया, क्या पैटर्न है, कोई इनपुट के लिए अलहदा से हैं, आउटपुट के लिए अलहदा से मेथड्स हैं, इसी तरह से जो और डिफरेंट मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, तो उन पैटर्न्स को देखना। और इवन स्टेटमेंट लेवल के ऊपर भी आप एब्स्ट्रैक्शन को देख सकते हैं। तो फिर ये जो सारी डिफरेंट जो हमारी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हैं, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शनलिटी। और इससे हमें क्या एक ब्लॉक डायग्राम मिलती है सिस्टम इंटरेक्शन की, क्या डिफरेंट एप्लीकेशन है किस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, और सिस्टम के अंदर भी अपनी एप्लीकेशन या सिस्टम के बाहर अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन है तो वो कैसे है। और फिर
वी नीड टू कम अप विद द कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन और फिर उसको रिव्यू करना है, कंफर्म करना है टू द एग्जिस्टिंग कोड। और अगर हम लार्ज जो है सिस्टम्स की बात करें तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटेड टूल यूज़ करते हैं जिनके थ्रू जो है हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं या रीबिल्ड कर सकते हैं। और फिर इसकी जो आउटपुट है इस प्रोसेस की, जो कि प्रोसेसिंग लेवल के ऊपर है, दैट इज़ पास टू द रिस्ट्रक्चरिंग एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग टूल्स। अब हम बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग की यूज़र इंटरफेस के कॉन्टेक्स्ट में। पहले डेटा की बात की, फिर प्रोसेसिंग की बात की, और अब हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेस की, कि यूज़र इंटरफेस के हवाले से अगर हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है तो क्या करना होगा। एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन री इंजीनियरिंग एक्टिविटी। अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके अंदर इंटरेस्टेड होती हैं। अपने एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है उसको आम तौर पे चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगेन उस इंटरफेस को चेंज करके जो नया इंटरफेस लेके आना है, जो नई यूमेसे के जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेके आना है, वो किस तरह का होना चाहिए, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखें जो 3 बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिक एक्शंस दैट द इंटरफेस मस्ट प्रोसेस। और बेसिक एक्शंस क्या हैं, क्या वो की स्ट्रोक्स हैं या माउस क्लिक्स हैं जो कि आपको स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपने करने हैं। यूज़र की इंटरेक्शन जो है इंटरफेस के साथ वो बहुत ज़्यादा इस बात पे मैटर करती है, ये बात कि कितनी उसको कीज प्रेस करना पड़ती हैं, हाउ मेनी टाइम्स ही हैज़ टू प्रेस द माउस बटन। तो अब अगर आपने एफिशिएंट बनाना है, अगर आप री इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर उसके अंदर आपने उसको मिनिमाइज करना होगा। तो इसको पीछे की तरफ लेके आना होगा। अगर पहले उसको 5 की प्रेस करना पड़ी है तो आपकी जो ये एक्टिविटी है ये उसको 4 पे या 3 पे ले जाए। माउस क्लिक्स अगर उसको पहले 5 करना पड़ रही है तो मे बी कि आप उसको 3 करना पड़े। तो इस तरह से देखना होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, दैट इज व्हाट इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू दीज एक्शंस। कि ये जो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म होंगे, सिस्टम की जो डिफरेंट स्टेट्स होंगी वो क्या, सिस्टम का बिहेवियर जो होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो क्या होगा। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि डिफरेंट एक्शंस के अगेंस्ट सिस्टम का बिहेवियर क्या होना चाहिए। और इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय अ रिप्लेसमेंट, और मोर प्रिसाइजली व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ इंटरफेस इज रेलेवेंट हियर। कि आप जब एक रिप्लेस कर रहे हैं ओल्ड GUI को या ओल्ड इंटरफेस को विद न्यू इंटरफेस, तो किस तरह से आप उसको असेस कर सकते हैं या एवेलुएट कर सकते हैं। कैसे आप कहेंगे कि ये जो इंटरफेस है ये प्रीवियस इंटरफेस की तरह का ही है, मतलब जो फंक्शनैलिटी है वो उस तरह से है, इंटरफेस डेफिनेटली जो है वो चेंज होना चाहिए। तो अब इसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो नया इंटरफेस है वो पुराने इंटरफेस जैसा नहीं होना चाहिए। जो उसकी लेआउट है, जो उसकी अपीयरेंस है टू द यूजर, वो पुराने सिस्टम की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि वी नीड टू डेवलप अ न्यू मेटाफोर जो कि यूजर की इंटेंशन को भी पूरा करे, यूजर की जो भी टास्क हैं उसको प्रॉपरली फुलफिल करे और अपने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सही होना चाहिए। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे है कि सपोज आपके पास एक पुराना इंटरफेस था और उस इंटरफेस के अंदर आपने यूजर से कोई स्पेसिफिक वैल्यू लेनी है। अब लेट्स से कि वो स्पेसिफिक वैल्यू किसी भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के लिए उसकी एक रेंज है, दैट इज 1 to 10, और यूजर ने नंबर प्रेस करना है कोई भी बिटवीन 1 and 10। तो अब अगर नया आपने इंटरफेस बनाया है तो इस नए इंटरफेस के अंदर मेटाफोर क्या हो सकता है जो अप्लाई किया जा सकता है, वो ये हो सकता है कि आप यूजर को जो है वो स्क्रॉल बार दे दें जिसके थ्रू जो है वो अपना सेट कर सके कि उसको क्या स्पेसिफिक रेंज चाहिए। तो हमें इस तरह की डिफरेंट जो यूजर के जो एक्शंस या टास्क हैं उसको अंडरस्टैंड करके और नया बेहतर जो है इंटरफेस देना होगा जो कि प्रीवियस जो ओल्ड इंटरफेस है उसकी तरह का ना हो, उसका मिरर ना हो। मोर प्रिसाइजली हम इसको इस तरह से कह सकते हैं।
आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने बात स्टार्ट की सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन से, और सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के हवाले से हमने एक सबसे पहले थ्योरी डिस्कस की, दैट इज यूनिफाइड थ्योरी ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। और इसके अंदर हमने डिफरेंट लॉज को डिस्कस किया कि जैसे एक इसके अंदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन जो हो सकती है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चेंज जो है वो एक कांस्टेंट है, चेंज आती है, चेंज को आप नहीं रोक सकते। तो जैसे जैसे चेंज अगर होती है वैसे वैसे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज होता है, अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता है। इसी तरह से अगर आपका सिस्टम इवॉल्व होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, तो आपके सॉफ्टवेयर की जो कम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ेगी। और अनटिल अनलेस कि आप उसके लिए कोई सीरियस एफर्ट नहीं करें और उसको आप मेंटेन नहीं करें तो कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ेगी। इसी तरह से जो आपका सॉफ्टवेयर है उसका जो साइज है वो भी ग्रो करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसको भी आपने देखना है कि कैसे जो मैनेज करना है उस साइज को। और फिर इसी तरह से और भी डिफरेंट हमने फैक्टर्स देखे जो कि सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन से रिलेटेड थे। तो हमने कहा कि सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता है, और सॉफ्टवेयर इवॉल्व के कॉन्टेक्स्ट में जब हमने बात की कि समटाइम्स वी नीड री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग क्या है कि व्हेन यू अप्लाई और इंट्रोड्यूस रेडिकल चेंजेस टू योर प्रोसेस, और वो बिजनेस प्रोसेस भी हो सकता है, वो आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस भी हो सकता है, टू अचीव सम ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स। कि कोई डिफरेंट जो है बिल्कुल आप चेंज लेके आते हैं प्रोसेस के अंदर, और उसके थ्रू आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहे हैं। और वो ऑब्जेक्टिव जो है विद सम स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि जैसे यू वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है, आप इसी तरह से कम टाइम के अंदर स्केड्यूल को रिड्यूस करना चाहते हैं, आप अपने स्टाफ को जो है वो एजुकेट करना चाहते हैं, और एंड सो ऑन। डिफरेंट आपके कॉन्स्टेंट्स या डिफरेंट आपके डिजायर लिस्ट हो सकती है। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और बिजनेस प्रोसेस की जब बात करते हैं तो बिजनेस इज, पहले हमने प्रोसेस की बात की कि प्रोसेस इज इनफैक्ट ए सेट ऑफ रिलेटेड टास्क टू अचीव सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के मॉडल को हमने डिस्कस किया, और इसी तरह से सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के मॉडल को डिस्कस किया। जब हमने बिजनेस प्रोसेस मॉडल के अंदर की एक्टिविटीज को देखा कि फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई और रादर वी नीड टू डिफाइन बिजनेस गोल्स। हमने बिजनेस गोल्स को डिफाइन करना होता है, और बिजनेस गोल्स को डिफाइन करने के बाद जो सेकंड की एक्टिविटी है दैट इज प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन है। और प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन के अंदर अगेन के कहाँ पे हमें जो है चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, और हमने अकॉर्डिंग टू बिजनेस गोल्स या बेस्ड ऑन बिजनेस गोल्स हमने उसको आइडेंटिफाई किया। वंस इट इज आइडेंटिफाइड और वहाँ पे चेंजेस हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, हम प्रोसेस आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हमें चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, प्रोसेस को एवेलुएट करते हैं, उसके अंदर क्या प्लस माइनस है, और फिर प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन है कि क्या चेंजेस अब हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, क्या कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करानी है। और उन चेंजेस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करें। वी मे इम्प्लीमेंट दोज चेंजेस एट स्मॉल लेवल। वो क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर, किसी डिपार्टमेंट या यूनिट लेवल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। और फिर उस प्रोटोटाइपिंग के जो रिजल्ट्स हैं, जो फीडबैक है, उसकी बेस के ऊपर हमने क्या करनी है, वी नीड टू रिफाइन आवर चेंजेस। हो सकता है क्वाइट पॉसिबल के कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हो, एंड वंस इट इज डन, हमने रिफाइन कर लिया, वी नीड टू इंस्टेंशिएट दिस होल प्रोसेस, जो कि नया प्रोसेस है जिसको री इंजीनियर किया है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये हो गया हमारा बीपीआर मॉडल। और इसके अंदर हमने कहा कि इट इज आइटरेटिव प्रोसेस, आइटरेटिव मॉडल है, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस है। फिर हमने बात की सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल की, और सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल में जो पहली की एक्टिविटी है दैट इज इन्वेंट्री एनालिसिस। इन्वेंट्री एनालिसिस को हमने कहा कि वी नीड टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस,
सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, उन एप्लीकेशन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, जो की एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखना है। क्या बिजनेस क्रिटिकलिटी है, क्या उसकी लॉन्गेविटी है, कितने अरसे से वो है एप्लीकेशन, उसकी क्या प्रायोरिटी है, और फिर उस बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज यू नीड टू सिलेक्ट द कैंडिडेट एप्लीकेशंस। क्योंकि आपको जब आपने री इंजीनियरिंग का प्रोसेस लेके आना है, डेफिनेटली यू नीड रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। तो उसको आपने कैंडिडेट एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करना है जो कि ज्यादा क्रिटिकल है फॉर योर बिजनेस। और उसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो सेकेंड एक्टिविटी है इस प्रोसेस मॉडल में। और डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से अगेन हमने देखना होगा कि हमें किस तरह की एप्लीकेशंस के अंदर रिसोर्सेज को जो है वो इन्वेस्ट करना है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी हो सकती हैं जो अब ज्यादा जिसके अंदर चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है और जिनकी जो लाइफ टाइम है वो ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन है। तो आप अगर उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स को या इस तरह की एप्लीकेशंस को आप एज इट इज जो है चलने देते हैं। अगर आपके पास दूसरी एप्लीकेशंस हैं जो कि बिजनेस क्रिटिकल हैं और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि समहाउ लिमिटेड जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है या रीडॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज अपने इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन तीसरी एक टाइप ये हो सकती है कि जो बहुत ज़्यादा आपकी हाई प्रायोरिटी एप्लीकेशन है, बहुत बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन है, और उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं फॉर द फुल रीडॉक्यूमेंटेशन। तो ये आपकी चॉइसेस हो सकती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रायोरिटीज ऑफ द एप्लीकेशंस। और फिर इसी तरह से हमने बात की रिवर्स इंजीनियरिंग की, और रिवर्स इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि ये हार्डवेयर डोमेन से आया है। और रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर आप क्या करते हैं, जैसे हार्डवेयर चिप है, और अगर हार्डवेयर की बात करें, कंपटीटर की चिप आपने ली और उसको जो है डिसेंबल किया और ट्राई टू फाइंड आउट द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। और इसी तरह से जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो सॉफ्टवेयर कोड से जो है आप ट्राई करते हैं, अगर आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है जो कि आपका अपना है और उसकी पहले से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और आपके पास स्पेसिफिकेशन या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप सोर्स कोड से जो है बैकवर्ड जो है उसको जाते हैं और स्पेसिफिकेशन, उसका डिज़ाइन जो है वो ट्राई करते हैं टू आइडेंटिफाई। और फिर इसी तरह से हमने बात की कोड रिस्ट्रक्चरिंग की, और कोड रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर हमने बात की कि ये भी डिफरेंट लेवल के ऊपर हो सकता है, और इसको हमने कहा कि ये री इंजीनियरिंग की एक्टिविटी जो है बहुत कॉमन है। कोड को आप मॉडिफाई करते हैं या कोड को जो है आप कंप्लीटली रीराइट करते हैं, और इसी तरह से फिर हम देखते भी हैं इसको प्रॉपरली, इसके रिव्यू और टेस्ट करते हैं कि कहीं इसकी वजह से, रीराइट की वजह से एप्लीकेशन में कोई एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है, जो इसकी दूसरे कंपोनेंट्स के साथ, एप्लीकेशंस के साथ जो इंटरेक्शन है वो एज यूजुअल है। और फिर इसी तरह से डेटा रिस्ट्रक्चरिंग की बात की। डेटा रिस्ट्रक्चरिंग जो है ये एक थॉरो री इंजीनियरिंग एक्टिविटी है, और इसके अंदर हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर रिस्ट्रक्चरिंग को देख सकते हैं कि डेटा जो है वो ग्लोबल सिस्टम लेवल के ऊपर भी देख सकते हैं कि क्या ग्लोबल डेटा जो है एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है, लोकल लेवल के ऊपर भी देख सकते हैं, और इवन इसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और फिर उसकी जो है आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको हम देखते हैं। और फिर इसके बाद हमने बात की जो की एक्टिविटी थी आखिरी सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल की, दैट इज फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के अंदर हमने बात की कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में जो बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स हम उसको कन्वर्ट करते हैं नई एप्लीकेशन, नए सॉफ्टवेयर में, और उसके लिए कुछ टूल भी हो सकते हैं अवेलेबल जो कि हमें इसमें हेल्प आउट करें, और ये विदाउट टूल भी ये एक्टिविटी हो सकती है।
और इसके बाद हमने रिवर्स इंजीनियरिंग को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया और हमने कहा कि रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हो सकती है। पहला उसका लेवल ये है कि हम डेटा के लेवल के ऊपर देखते हैं, डिफरेंट डेटा के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कशन की। उसके बाद इसको हमने कहा कि प्रोसेसिंग के लेवल के ऊपर देखते हैं, और जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो फिर अगेन डेटा में भी डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस हैं, और जब प्रोसेसिंग में भी डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, जैसे सिस्टम लेवल के ऊपर देखते हैं, प्रोग्राम लेवल के ऊपर देखते हैं, फिर कंपोनेंट लेवल के ऊपर देखते हैं। कंपोनेंट से फिर हम जो है उस कंपोनेंट्स के अंदर क्या पैटर्न्स हैं, और इवन स्टेटमेंट लेवल के ऊपर भी इसको देख सकते हैं। और फिर हमने यूज़र इंटरफेस के हवाले से रिवर्स इंजीनियरिंग की बात की, और हमने कहा कि जो इसके अंदर की कंसिडरेशंस है हमारी, वो ये है कि जो नया आपका इंटरफेस है वो बिल्कुल पुराने इंटरफेस की तरह नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर हमें ज़्यादा अच्छे मेटाफोर इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया आखिर में कि अगर हमने यूज़र से कोई स्पेसिफिक वैल्यू लेनी है जो कि पहले नंबर इनपुट थी, अब उस नंबर इनपुट को आप स्क्रॉल बार के थ्रू जो है वो ले सकते हैं, रादर देन कि वो इनपुट करे, वो जस्ट माउस को जो है माउस के थ्रू जो है वो स्क्रॉल बटन को जो है वो ड्रैग करे, आगे पीछे कर सकता है। तो जब इंटरफेस हम री इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर माउस क्लिक्स क्या होंगी और की स्ट्रोक्स जो है नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी टास्क एफिशिएंसी के अंदर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद हम जो बाकी और सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे। अगले लेक्चर में आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।